ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अपना हमारा ब्रेकफास्ट देखिए यहाँ पे ऐसे सेटअप किया हुआ है। ओके एंड सेम टेबल। चलो आइए, ब्रेकफास्ट इज रेडी। थैंक यू। नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश सैन मैरिनो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है? ये यूरोप का तीसरा सबसे छोटा और दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जो किसी और देश के भीतर भूमि से घिरे हुए हैं। बाकी 2 वेटिकन सिटी और लेसोथो हैं। Namaste. How is the group going? Very Good or very good? Very good. So far. Now just have the crack. Anyway, I'm Antonia. We are going to be together for some time. And now we are just about meeting here at the parking place 1. Remember the number because there are several parking places in San Marino. Now we start going down there, and down there is the only spot in San Marino where you have a choice: steps and elevator. You can take what you want, but I think you look very young and very fit. Very good. And then we join again up there and go along behind the trees. Eventually reach the main gate in town and enter the historical center of San Marino, where we start telling you more. Now ready, steady, let's go please. इस लंबे इतिहास ने इसे कई उतार चढ़ाव दिखाए हैं, फिर भी यह अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा है। सैन मैरिनो पहाड़ियों पर बसा हुआ है और इसके सबसे ऊंचे बिंदु माउंट टाइटानो से दिखने वाला नजारा किसी परी कथा जैसा लगता है। यहाँ के 3 ऐतिहासिक टावर गुएटा, सेस्टा और मोंटाले आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये देश इतना छोटा है कि यदि आप चाहें तो कुछ ही घंटों में इसका पूरा चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी हर कोना इतना सुंदर है कि आप जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे। आज हम सैन फ्रांसिस्को गेट के सामने खड़े हैं, जो शहर और इसके ऐतिहासिक केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली संरचना है। ये गेट 1361 में एक गार्ड पोस्ट के रूप में बनाया गया था, जो इसे लगभग 660 साल पुराना बनाता है। बाद में 1451 में इसे और बड़ा और ऊंचा किया गया था। इसका नाम सैन फ्रांसिस्को गेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसे फ्रांसिस्कन कॉन्वेंट की दीवारों से बनाया गया था। चलिए अब इस गेट से अंदर चलते हैं और शहर के ऐतिहासिक केंद्र की खोज करते हैं।
सैन मेरिनो की आबादी लगभग 30,000 है और यहाँ के लोग बेहद शांत और दोस्ताना हैं। जब आप किसी स्थानीय व्यक्ति से बात करेंगे तो वे गर्व से अपने देश की कहानियां सुनाएंगे। Told you earlier, we just met at the parking place. One came all the way up, either with elevator or stairs, went through the main town gate in San Marino. This is the main entrance into town because all the way around there are thick walls for protection. This was the reason long time ago, Middle Age, 1,800, 600 years ago, with 5 gates, 5. But St. Francis Gate is the main one in San Marino. 90% of visitors, residents, go in and out from here, okay? So what that means is very important for you. You must come back here. First of all, in order to reach your coach again, later on for departure. But another very important reason is, this is going to be your restaurant, where you are going to have, where you're going to have your lunch. At what time? I guess your tour leader will tell you eventually. What we do with me, first of all, please keep an eye on the flag. I know there are people, they are interested on infos, and I will give you infos. I know there are people, they are not interested. No problem. Either you follow the flag, if not, you must come back here for lunch. Okay? At what time? Because what we do, we go, we go up this way very soon, and we go left and right, and back here. I will be back here on time for lunch, okay? So, but now we tell you at what time you're going to have lunch, very soon. Now I was telling you again, St. Francis Gate, standing next to St. Francis Church, most ancient church in San Marino. What we are going to visit today is very small, so no long distances, tiring, no, nothing like this. Very small, but a little bit climb, yes, because as I told you, we go around and back here very soon. Now, at St. Francis Gate, the main gate in town, when you go back, on the right hand, there is a big board made out of bronze with something written in Italian and English. It says, the historical center of San Marino. Where is it? Here. From here uphill, we call it historical center. And the Mount Titano. Today, now driving up, you saw the eye line of the Mount Titano with the 3 fortresses. We are up here now, okay? So once again, the historical center and the Mount Titano were written on the list of the World Heritage UNESCO. Because of the geological site, the local stone, this is mainly local stone everywhere, 90 to 95%. Local stone. The traditions and the government system. For these 3 reasons, we are a UNESCO site. I will tell you more later on as we go up here. And from now on, we are going just to go and find all the places. Just old buildings, mainly going back to the Middle Age, 1,800, 600 years ago. One last info and then we go. Always on that big bronze board at the gate on the right hand as you go back is there on display the territory of the Republic. You know, today you are visiting smallest and most ancient republic existing. 61 square kilometers. But today we only visit the capital. What is the name of the capital? San Marino. Very good, very good. San Marino
town, better say, and better say only the historical center, because through the gate inside here we call it historical center. Only old places and very many shops waiting for you. But that depends on the free time you are going to get for your tour leader. So at what time should we be back here for lunch? 1 o'clock, everybody here. Either you stick to the flag or you don't stick to the flag. 1 o'clock back here in front of the small church. He will show you the section book for you. Ready, steady? Go. Let's go, please. Let's go. You are the official video maker of the group. यदि आप खरीदारी के शौकीन हैं, तो सैन मेरिनो आपके लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि यहाँ टैक्स फ्री शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, लेकिन सैन मेरिनो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और अपने स्वयं के सिद्धांतों पर चलता है। सेंट मेरिनस एक ईसाई पत्थर काटने वाले स्टोन कटर थे। 4वीं सदी की शुरुआत में रोमन सम्राट डायोक्लेशियन के दौर में ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। सेंट मेरिनस भी इसी उत्पीड़न से बचकर भाग निकले। उन्होंने माउंट टाइटानो पर शरण ली, जो आज के सैन मेरिनो में स्थित है। यहीं पर उन्होंने एक छोटा सा समुदाय स्थापित किया। कल्पना कीजिए, एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति उत्पीड़न से भाग रहा है और फिर एक पहाड़ पर जाकर एक नई शुरुआत करता है। ये उनकी दृढ़ता और विश्वास का ही नतीजा था। धीरे धीरे उनका स्थापित किया हुआ ये छोटा सा समुदाय विकसित होता गया और अंततः 301 ईस्वी में एक स्वतंत्र गणराज्य सैन मेरिनो के रूप में सामने आया। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था, दृढ़ता और नेतृत्व एक पूरे राष्ट्र को जन्म दे सकता है। जब आप कावा दे बेलेस्ट्रीरी से गुजरते हैं, जहां पुराने जमाने में क्रॉसबो शूटिंग होती थी, तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें धीरे धीरे कोई कहानी सुना रही हो, माइनस एक ऐसा अतीत जो आज भी सांस ले रहा है। फिर वे मोड़ आते हैं जो आपको गोएटा टॉवर की ओर ले जाते हैं।
सैन मैरिनो, एक छोटा सा रत्न। सैन मैरिनो एपेनिन पर्वत के उत्तर पूर्वी ढलानों पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, जो इसे वेटिकन सिटी के बाद इटली के भीतर दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोस्टेट बनाता है। 2025 तक इसकी आबादी 34,042 है। इसकी राजधानी सैन मैरिनो शहर मोंटे टाइटनो की चोटी पर स्थित है। वहीं डॉगना, जो सेरावाले नगर पालिका में है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। सैन मैरिनो के रास्ते सिर्फ पत्थरों और गलियों का समूह नहीं है, वे कहानियां कहते हैं, रहस्य छिपाते हैं और एक अनूठी यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं। सैन मैरिनो का बेसिलिका, जिसे बेसिलिका डी सैन मैरिनो भी कहा जाता है, सैन मैरिनो गणराज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्च है। ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है। ये बेसिलिका सैन मैरिनो गणराज्य के संस्थापक और संरक्षक संत सेंट मैरिनस को समर्पित है और ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। 19वीं सदी की शुरुआत में निर्मित इस बेसिलिका में नियोक्लासिकल वास्तुकला की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें खंभों वाला एक शानदार पोर्टिको और एक खूबसूरती से सजाया गया आंतरिक भाग शामिल है।
हम आ पहुंचे हैं पियाजा डेला लिबर्टा। पियाजा डेला लिबर्टा जो सान मारिनो शहर का दिल है। ये जगह सच में ऊर्जा से भरी हुई है और यहीं पर आपको देश के राजनीतिक जीवन का केंद्र देखने को मिलेगा, पलाजो पब्लिको, जहां देश की सरकार चलती है। ये सरकारी इमारत 19वीं सदी के आखिर की है और इसकी बनावट कुछ फ्लोरेंस के पलाजो वेकियो जैसी है। यहाँ पर आप एक फीस देकर अंदर घूम सकते हैं और इस खूबसूरत इमारत को करीब से देख सकते हैं। घूमते घूमते लगभग 1 बज चुका था और पेट में चूहे कूदने लगे थे। आज का हमारा लंच रेस्टोरेंट बोलोनेज में था। और क्या लंच था! ये बिल्कुल सैन मैरिनो के पारंपरिक लंच जैसा था, जिसमें गर्मा गर्म पिज्जा, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, स्वादिष्ट टोमेटो पास्ता और मुंह में पानी ला देने वाले रोस्टेड ग्रिल्ड वेजिटेबल और नॉन-वेज आइटम्स थे। लंच के बाद हमने अपनी बस पकड़ी और निकल पड़े अपने इस टूर के सबसे आइकॉनिक लोकेशन पीसा के लिए। रास्ते भर हमने खूब बातें की, गाने सुने और नज़ारों का मजा लिया। शाम होते होते करीब 7 बजे हम पीसा में अपने होटल B&B पहुंच गए।
सब लोग काफी थक चुके थे, लेकिन होटल पहुंचते ही फिर से जोश आ गया। और हाँ, आज डिनर में एक सरप्राइज आइटम था जिसकी डिमांड हमारे ग्रुप के लोगों ने ही की थी। अब देखना ये है कि ये सरप्राइज क्या है। ओके वीणा वर्ल्ड, सो अपना डिनर आ चुका है। ये है हमारे लिए वाइन जो अपने सुनील भाई है राजस्थान रेस्टोरेंट से लेके आए। उसके बाद में ये कोला वाइन के लिए, अगर आइसी आइस, तो यहाँ पे अपना सेटअप जो है वो लग चुका है। ये है अपने सुनील भाई। आइए, डिनर रेडी है, आइए। हाँ, एक 5 मिनट में आ जाइए। नहीं